Hello students, hello and welcome everybody. This is Abhishek Tiwari here. So students, once again I'm here with a very new topic, which is another poetry named childhood. So students, today get ready to see the poetry childhood, okay, which is composed by Marcus Nathan, okay. So students, this poetry is very interesting poetry. Even in our it's a question of everyone's life, okay, where everyone seeks to know, where everyone wishes to know where his childhood went, okay. Whenever we grow up, a question will often comes to our mind: how did we grow up so quickly, okay. Means, how did we pass through our childhood? Where did our childhood go? Okay. Means how often whenever someone expect you some grow up activities, and you feel like and sometime you fail to do so, then you will feel like about your childhood, okay. So this poetry, it deals about such kind of emotions and conditions, that how our childhood went, okay. So these things, so one and after, the narrator searches his childhood, okay, in his poetry, asking several questions and or searching several places where his childhood went, okay. So in doing so, students, Nathan just tried to elaborate actually what actually the misconception of childhood, and what exactly the reality of childhood, okay, or where did it go. So this thing, the illusion and the reality, the journey between illusion and reality, we are going to study right here, okay. So students, let's come to this point, and we will see ourselves how the Marcus Nathan's childhood went and where it went out, okay. Let's see everyone the answer of this question right here. So this is the first paragraph which we are going to start with. When did my childhood go? Okay. When did the narrator starts his question? When did my childhood go? Was it the day I ceased to be 11? Further he asked again, was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography, okay, and therefore could not be? Was that day, okay. Poet asks sincerely to himself, when did my childhood go? Means वो पूछता है कि मेरा बचपन आखिर मुझसे जुदा कब हो गया, कब मुझसे दूर हो गया मेरा बचपन, मुझसे कब चला गया, ओके. वॉज इट द डे आई सीज्ड. अब वो अपनी पास्ट की मेमोरीज में जाता है और सर्च करता है वन बाय वन वेदर हिज चाइल्डहुड वेंट टू वन प्लेस और टू अनदर, ओके. एक एक स्थान को वो सर्च करता है कि उसका बचपन आखिर चला कहाँ गया. वॉज इट द डे आई सीज टू बी 11. क्या वो दिन था जिस दिन मैं 11 साल का हुआ, ओके. वॉज इट द डे आई सीज टू बी 11. क्या वो दिन था जिस दिन मैं 11 वर्ष का हुआ था, 11 ईयर्स का हुआ था, ओके. जब मैंने 11 की बाउंड्री क्रॉस कर दी थी, जब मैंने 11 पूरा कर लिया था, क्या वो उस दिन मेरा बचपन मुझसे चला गया, ओके. फिर वो सर्च करता है, फिर फर्दर और क्वेश्चन पूछता है वो. वॉज इट द टाइम आई रियलाइज दैट हेल एंड हेवन could not be found in geography. क्या वो उस दिन था जिस दिन मैं स्कूल में ये सीखा, जिस दिन मैंने स्कूल में ये रियलाइज़ किया दैट हेल एंड हेवन, कि स्वर्ग और नर्क could not be found in geography. भले ही ये दो प्लेसेस हैं, पर जोग्राफ़ी की बुक में ये दोनों प्लेसेस का कहीं पे भी जिक्र नहीं मिलता है. जिस दिन मैं ये जाना, जिस दिन मैं ये सीखा, क्या उस दिन मेरा बचपन मुझसे जुदा हो गया,
Okay, further, and therefore could not be was that day, एंड therefore और इसीलिए it could not be found, इसीलिए वो मेरे पास दोबारा नहीं लौट सका। क्या ये was that day, क्या वो दिन था जिस वजह से या जिस दिन ये चीज़ें हुई कि मेरा चाइल्डहुड, मेरा बचपना मुझसे छूट गया। ओके, फर्दर, ओके, लेट्स सी फर्दर, यू नो दैट द नेक्स्ट पैराग्राफ ऑफ दिस पोएट्री, When did my childhood go? वो फिर से क्वेश्चन करता है कि मेरा बचपना कब चला गया, मेरा बचपन कब चला गया। Was it the time I realized that adults were not all they seem to be? Okay, क्या ये उस दिन था जिस दिन मैंने ये रियलाइज़ किया that adults were not, कि adults जो होते हैं वो actually not all that they seem to be, मीन्स जो वो दिखाई पड़ते हैं, जैसे लोग एडल्ट लोग, वयस्क लोग जैसे दिखाई पड़ते हैं ना, मतलब वैसे नहीं होते हैं। क्या उस दिन मुझे ये रियलाइज़ हुआ, क्या उस दिन मुझे ये मालूम पड़ा कि मेरा बचपना चला गया, जब मैंने ये रियलाइज़ किया कि जो एडल्ट्स होते हैं वो वैसे नहीं जैसे वो दिखाई पड़ते हैं। तो क्या उस दिन मेरे बचपन मुझसे छूट गया। दे टॉक्ड टू ऑफ लव एंड प्रीस्ट ऑफ लव। वो क्या कहता है, वो क्यों कहता है ये सेंटेंस को कि एडल्ट्स जैसे दिखाई पड़ते हैं वैसे नहीं होते हैं, क्योंकि फर्दर वो ये कहता है कि एडल्ट्स टॉक ऑफ लव, दे टॉक्ड ऑफ लव, वो प्रेम की बातें तो करते हैं, एंड प्रीस्ट ऑफ लव, प्रेम का उपदेश भी देते हैं। वो प्यार से रहने की बातें सिखाते हैं, प्यार का उपदेश भी देते हैं, बट डिड नॉट एक्ट सो लविंगली, लेकिन खुद प्रेम से किसी से व्यवहार नहीं करते हैं, बर्ताव नहीं करते हैं, कंडक्ट उनका लविंगली नहीं होता है, ठीक है, किसी से अप्रोच नहीं करते हैं लविंगली। सो वॉज दैट डे ही सिंपली न्यू दैट यू नो हिज चाइल्डहुड डिड गो समवेयर, ठीक है, क्या वो दिन था जिस दिन उसको ऐसा मालूम पड़ा, बट डिड नॉट एक्ट सो लविंगली, मतलब वो प्यार की बातें तो करते हैं, प्यार का पाठ भी पढ़ाते रहते हैं, लेकिन खुद प्यार से व्यवहार नहीं करते हैं। वॉज दैट द डे व्हेन माई चाइल्डहुड डिड गो अवे। ओके, तो ये क्वेश्चन वो पूछता है। आगे स्टूडेंट्स, थर्ड पैराग्राफ, स्टूडेंट वो फिर से क्वेश्चन करता है वही चीज़ें, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कब चला गया, मेरा बचपन मुझसे कब जुदा हो गया। वॉज इट व्हेन आई फाउंड माई माइंड वॉज रियली माइन, क्या ये उस दिन था जिस दिन मैंने पाया कि मेरा मन मेरा ही था। क्या उस दिन मुझे ये रियलाइज़ हुआ, क्या उस दिन मुझे ये मालूम पड़ा जब मैंने पाया कि मेरा मन मेरा अपना ही था, उस पर किसी का वश नहीं था। टू यूज़ विच एवर वे आई चूज़, जो तरीका मैं चाहता था मैं उसको उपयोग कर सकता था, मैं अपने जीवन को अपने हिसाब से ढाल सकता था। जिस दिन मुझे ये रियलाइज़ हुआ, क्या उस दिन मेरा बचपन चला गया। प्रोड्यूसिंग थॉट्स दैट वर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल, वो विचार जो मेरे दिमाग में प्रोड्यूस हुआ करते थे, दैट वर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल, कि जिस दिन मेरे दिमाग में वो विचार आने लगे, वो नए नए आइडियाज़ एंड थॉट्स आने लगे जो दूसरों से इमिटेट नहीं थे, दूसरों की नकल नहीं होते थे, जैसे अपने खुद के विचार जिस दिन मेरे मन में आने लगे, बट माई ओन, जो कि मेरे अपने खुद के होते थे, किसी से कॉपी नहीं होते थे, एंड माई एन अलोन, और केवल मेरे विचार होते थे जिस दिन मेरे अपने खुद के बनाए हुए विचार मेरे मन में आने लगे। क्या वो दिन था जिस दिन मेरा बचपन मुझसे चला गया। ओके, वो पूछता है कि क्या वो दिन था जिस दिन मेरा बचपन मुझसे जुदा हो गया, मुझसे चला गया। फर्दर पोएट फर्दर आस्क्ड अगेन, वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, कि मेरा बचपन आखिर चला कहाँ गया। ठीक है, इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस, बाद में वो ये रियलाइज़ करता है दैट हिज चाइल्डहुड वेंट टू सम फॉरगॉटन डेज, उसका बचपना कुछ ऐसे फॉरगॉटन प्लेस की तरफ चला गया है, कुछ ऐसे गुमशुदा स्थान की ओर उसका बचपन चला गया है। दैट्स हिडन इन एन इन्फेंट्स फेज, जहाँ जा कर के वो एक छोटे से बच्चे, एक इन्फेंट यू नो स्पेशली दैट हिडन्स इन एन इन्फेंट्स फेस, जो कि जा कर के एक छोटे से बच्चे की जो है चेहरों में गुम हो गया है। दैट्स ऑल आई नो, whatever all I know that my childhood
went somewhere and it hidden in the infant's face. Okay, he realized that time that उसका बचपना जो है वो उससे जुदा होकर के किसी और छोटे इन्फेंट बच्चे के, एक इन्फेंट के जो है चेहरे में जाके छुप गया था. ये उसको रियलाइज हुआ दैट डे. ओके, सो दिस इज़ व्हाट द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोइट्री स्टूडेंट. दिस इज़ अ रियली वेरी mesmerizing poetry, I must say, which Mr. Nathan has produced to us. So this is what all about the explanation of this poetry. Hope this poetry would be very beneficial to you. Thank you. Have a good day, everyone.